کہ شہر میں آج بھی پیٹرول سپلائی کی صورتحال مزید خراب ہے۔ صبح سے سپلائی کے لیے ایک بھی گاڑی روانہ نہیں کی جا سکی۔ صدر پیٹرولیم ڈیلرز کا یہ کہنا ہے اوگرا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ آج رات قیمتیں بڑھتے ہی سپلائی بحال ہونے کا خدشہ ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ کمپنیاں قیمتیں بڑھانے کے لیے سپلائی روک کر بلیک میل کرتی ہیں۔ اوگرا فوری ملک بھر میں تیل کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے۔ پی پی ڈی اے نے یہ کہا ہے اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ صدر کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے قبل سپلائی روکنا ناقابل قبول ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، شہزاد خان عبدالی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، شہر لاہور کے اندر آج بھی پیٹرولیم کی سپلائی جو ہے وہ طلب کے مطابق نہیں آ سکی، اور اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز کے صدر چودھری نعمان مجید کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ آئل ڈپوؤں سے آج ایک بھی گاڑی لاہور شہر کے پیٹرول پمپس کے لیے روانہ نہیں ہوئی، اور شہر لاہور کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہے اس کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بڑی مشکل سے نظام چلا رہے ہیں، ایک یا دو نوزلیں چلا کر صارفین کو پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی جاری رکھنے کی کوشش میں جو ہے وہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ جٹے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز کے صدر چودھری نعمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، اور اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ آئل ڈپو جو ہیں انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو دانستہ طور پر روک رکھا ہے، اور شہر لاہور کی کھپت کے مطابق جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی نہیں دی جا رہی۔ شہر لاہور کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت ہے اس میں پیٹرول کی 45 لاکھ لیٹر ہے، اور جو ڈیزل کی کھپت ہے وہ تقریباً 25 لاکھ لیٹر کے قریب جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے بتائی جا رہی ہے، اور شہر لاہور کے اندر مجموعی طور پر 525 پیٹرول پمپ جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہیں، جن میں سے 150 پیٹرول پمپ کو کمپنیاں براہ راست آپریٹ کرتی ہیں۔ ان 150 پیٹرول پمپس پر تو پیٹرول کی سپلائی بہتر ہے، لیکن جو 375 پیٹرول پمپس پیٹرولیم مصنوعات خرید کر ڈیلر آپریٹ کرتے ہیں، ان پیٹرول پمپس پر جو پیٹرول کی سپلائی ہے وہ انتہائی کم ہے، اور اسی وجہ سے جو زیادہ تر شہری ہیں وہ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے جس پیٹرول پمپ پر ہم موجود ہیں یہاں پہ بھی سپلائی موجود نہیں ہے۔ یہ پیٹرول پمپ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈرین ہو چکا ہے، اور یہاں پہ آنے والے شہری جو ہیں وہ بھی خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن لاہور کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے، اور ایسے آئل ڈپو اور ایسی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے جو دانستہ طور پر شہر لاہور یا دیگر شہروں یا قصبوں اور دیہی علاقوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی جان بوجھ کر نہیں دے رہے، صرف اس لیے نہیں دی جا رہی کہ جو آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خرچہ ہے، کمپنیوں کو اس بات کا مفاد ہے کہ اس وقت جو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ریلیز کریں گے جب ان کو زیادہ پروفٹ نظر آئے گا۔ اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دانستہ طور پر صارفین کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اس حوالے سے اوگرا بھی اور وزارت پیٹرولیم بھی اور وفاقی حکومت بھی اقدامات کرے تاکہ شہر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی جو قلت ہے اس کو دور کرنے میں مدد مل سکے۔ جی اچھا شہزاد، لیٹ سپوز کہ آج رات کو اگر سپلائی بحال نہیں ہوتی تو کیا حکومت کے پاس کوئی ایمرجنسی بیک اپ موجود ہے؟ دیکھیں، شہر لاہور کے اندر اس وقت 375 کے قریب پیٹرول پمپس ہیں جو ڈیلر جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور ان ڈیلرز کی ایسوسی ایشن کے مطابق آج کوئی بھی گاڑی آئل ڈپو سے ان پیٹرول پمپس کے لیے نہیں آ سکی۔ البتہ جو کمپنیاں 150 کے قریب پیٹرول پمپ آپریٹ کرتی ہیں، ان پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کی سپلائی بہتر ہے، کیونکہ کمپنیاں اس کو براہ راست آن کرتی ہیں، لیکن 150 یہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پورے لاہور کی ضرورت کو کیٹر
नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर पेट्रोलियम सकते। डीलर्स ठीक ये है, कह रहे बहुत हैं। शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गया। सरकारी नर्ख 241, मार्केट में 450 रुपए किलो। एलपीजी डीलर सरकारी नर्ख नामे को नजरअंदाज करने लगे हैं। सार्फिन महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं और शहरियों का एलपीजी की सरकारी नर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा सामने आ रहा है। तो आपको बताएं कि शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गया। सरकारी नर्ख 241 और मार्केट में 450 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। एलपीजी डीलर सरकारी नर्ख नामे को नजरअंदाज करने लगे हैं। सार्फिन महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि एलपीजी की सरकारी नर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। इंतजामिया इस हवाले से एक्शन ले और इनकी मुश्किलात में जो इजाफा किया हुआ है इन डीलर्स ने उस पर काबू पाया जा सके। शहर में एलपीजी माफिया इस टाइम बेलगाम है और सरकारी नर्ख 241 है, जबकि मार्केट में कदरे ज़्यादा कीमत 450 रुपए किलो तक एलपीजी फरोख्त हो रही है और एलपीजी डीलर सरकारी नर्ख नामे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया क्यों सोई हुई है जान लेते हैं। हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, अगर शहर में अगर एलपीजी की कीमत की बात की जाए तो कीमत जो है वो सरकारी तौर पे ओगरा की जानिब से 241 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ मनमानी कीमत पे एलपीजी की फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तो एलपीजी जो है वो 350 रुपये से लेके और 450 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नर्खनामे के मुताबिक जो एलपीजी है इसकी कीमत इसकी जो फ़रोख्त है उसको हर सूरत में यकीनी बनाए ताकि आम शहरियों को किसी हद तक जो है वो सहूलत मिल सके। जबकि शहरियों का ये भी मौक़िफ़ है, उनका ये भी कहना है कि सुई गैस जो है वो आती नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरन जो है वो एलपीजी की गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है और एलपीजी की कीमत में इजाफे से शहरियों पर जो है वो इजाफी बोझ जो है वो डाला जा रहा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो कीमतों को कंट्रोल करे और ख़ास तौर पे जो सरकारी कीमत है, जो ओगरा की जानिब से नोटिफाइड कीमत है 241 रुपये फ़ी किलो की, वो हर सूरत में यकीनी बनाए ताकि आम शहरियों को किसी हद तक सहूलत जो है वो मिल सके। जबकि दूसरी तरफ जो एलपीजी फ़रोख्त करने वाले दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जब तक जो बड़े डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, उस वक्त तक जो है वो कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकती। उनका यही कहना है कि हमेशा जो है वो छोटे दुकानदारों को पकड़ा जाता है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, लेकिन जो बड़े दुकानदार जो डीलर्स हैं, जो मुनाफाखोर माफिया है, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। और जब तक इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी उस वक्त तक जो एलपीजी है इसकी सरकारी कीमत पर फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकती। जी बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। ओपन मार्केट में मुनाफाखोरों की मनमानियों का सिलसिला जारी है। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान हो चुके हैं और यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं इंतजामिया से कि सरकारी नर्खों का इतलाक यकीनी बनाया जाए। तो शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बू हैं। जी उस्मान। जी, शहर भर के अंदर फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट पे दस्तयाब नहीं है। तमाम अशिया सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत में फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसपे दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें मंडी से ही तमाम अशिया ज़ायद कीमत पे मिल रही हैं। डीसी रेट लिस्ट से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें उन्हें ख़रीदनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ और फल फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। अगर रेट्स की बात की जाए तो प्याज की सरकारी कीमत तो 100 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 200 तक फरोख्त किया जा रहा है। ईरानी टमाटर 180 रुपये कीमत तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन मार्केट में 300 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। अदरक 330 की जगह 450 में, शुगर फ्री आलू 35 की जगह 80 रुपये में, शिमला मिर्च 300 की जगह 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। देसी टिंडे 120 रुपये सरकारी कीमत तो मुकर्रर की गई, लेकिन वो कीमत भी सिर्फ नोटिफिकेशन तक रह गई और 160 रुपये में ये फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फल रेट लिस्ट में भी महंगे हुए हैं और दुकानों पे इससे भी ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। चीकू की कीमत 200 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 280 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है।
सफ़ेद खुबानी 320 रुपए की कीमत मुकर्रर हुई, लेकिन 380 से 400 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। केला 215 रुपए फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन दर्जा अव्वल का केला अभी 250 रुपए फ़ी दर्जन से कम में दस्तयाब नहीं है। चौसा आम 300 की बजाय 350 में, दुशहरी आम 270 की बजाय 300 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। नाशपाती की कीमत भी 230 मुकर्रर की गई, लेकिन 400 रुपए फ़ी किलो तक नाशपाती फ़रोख्त हो रही है। देसी जामुन की कीमत 190 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन वो भी 250 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है और दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें सरकारी रेट लिस्ट के जो कीमतें फ़रोख्त दी गई है उसके ऊपर कीमतें खरीद भी नहीं मिल रही है। उन्हें सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट से ज़्यादा महंगे मंडी से खरीदने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फल और सब्जियां फ़रोख्त नहीं कर सकते। और उनका भी ये कहना है कि अगर इंतज़ामिया मंडियों में रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद कराए तो वो भी सरकारी रेट लिस्ट पे कर शुक्रिया उस्मान। सरकारी तामीराती मंसूबों के लिए नए मार्केट रेट्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना पंजाब ने मार्केट रेट सिस्टम दूसरी छमाही 2026 की फहरिस्त जारी कर दी है। नए तामीराती नरखों का इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। नई फहरिस्त में तामीराती मटीरियल, मजदूरी, मुख्तलिफ तामीराती कामों के नर्ख शामिल हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अली रामी। जी अली रामी, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने सरकारी जो तामीराती मंसूबे हैं उनके लिए नए नर्ख मुकर्रर किए हैं मटीरियल के हवाले से, और ये सालाना जब भी बजट आता है तो हुकूमत की तरफ से नए रेट मुकर्रर कर दिए जाते हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बाय एनुअल रेट्स जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, ये 2026 तक के ये रेट मुकर्रर किए गए। तो हर 6 माह बाद ये नर्ख जो है मुकर्रर किए जाते हैं। तो इसमें नए तामीराती नर्खों का इतलाक जो 1 जुलाई से ही कर दिया गया है। अब इसमें नई फहरिस्त में तामीराती मटीरियल, मजदूरी और मुख्तलिफ तामीराती कामों के नर्ख जो है वो इसमें शामिल किए गए। ग्रेड 40 सरिये का सरकारी बुनियादी नर्ख जो है वो तकरीबन 11,727 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया गया है। ग्रेड 60 का जो सरिया है उसकी सरकारी बुनियादी जो नर्ख होगा वो 11,992 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया गया। कटिंग, बेडिंग, बिछाई और बाइंडिंग समेत ग्रेड 40 सरिये की लागत तकरीबन 12,045 रुपये तक मुकर्रर फ़ी मन मुकर्रर जो है वो हुकूमत की तरफ से सरकारी मनसूबाजात के लिए की गई है। और इसमें सीमेंट, ईंट, रेत और मजदूरी के अखराजात जो मुख्तलिफ तामीराती काम हैं उनके कंपोजिट के मुताबिक शामिल किए गए हैं। और इसमें मजदूर के अलावा जितने भी जो ग्रेड दर्जा चहारम के जो मुलाजम काम करते हैं किसी सरकारी प्रोजेक्ट के तहत, उनके रेट भी उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो उजरत है वो भी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई है। तो नए जो मार्केट रेट्स हैं इसकी फहरिस्त में कंक्रीट, ईंटों के काम, छत, फर्श, प्लस्तर, सड़कों, सीवरेज और दीगर तामीरातों के नर्ख जो है वो भी मुकर्रर किए गए, जिसमें अगर देखा जाए तो पिछले जो नर्ख रेट्स थे उनमें 5% से 2% जो है वो इसमें इजाफा किया गया है। नए नर्ख सरकारी तामीराती मंसूबों के तखमीनों के मुताबिक जो है वो तय किए जाएंगे। यानी अब जो भी किसी सरकारी प्रोजेक्ट का जो PC1 तैयार किया जाएगा वो इन्हीं रेट के मुताबिक तैयार किया जाएगा। और इससे खदशा है कि तामीराती मटीरियल महंगा होने से, उनके नरखों में इजाफा होने से जो PC1 है उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अली रामे। बात करें शहर के मौसम की। हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। तेज धूप से दर्जा हरारत में इजाफा हो चुका है और दर्जा हरारत 38 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मरियम मजहर हमारे साथ हैं, कैसा मौसम है बताएंगी। जी मरियम। बिल्कुल, इस वक्त सूरज अपने जलवे बिखेरने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सूरज अपने जलवे बिखेर रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लें तो दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस वक्त यूवी इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें तो यूवी इंडेक्स ख़तरनाक हद तक 8 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा, और शहरियों को भी एहतियात का कहा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 तक जाएगा, जबकि कम से कम 31 तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे हब्स और घुटन की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन हब्स और घुटन फिर भी मौजूद है, जिससे शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और निढाल भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज 10% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है।
है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि कई इलाकों में बारिश हो जाए जिससे मौसम बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर शुमार किया जा रहा है और आलूदगी की शरह इस वक्त 63% 163% रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों में मौसम अच्छे की तवक्को की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बारिशें होंगी जिससे मौसम बेहतर होगा और दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दर्जा हरारत 34 तक ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि बहुत कम है, जिससे मौसम में नुमाया तब्दीली देखने में आएगी और हवाओं का मेयार भी बेहतर होगा, हवाएं भी बेहतर चलेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आग मिचौली का सिलसिला ज़्यादा देखने में आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम।